So students, welcome back. In the last video we have already done practice set 3.2. Okay, there we saw some simple problems to state the test of congruency, and then we solved some simple examples of how to solve some simple problems related to congruence of triangle. Okay, we solved something around 1 2 3 4 5 and 6 problems accordingly. Okay, after finishing that 3.2, we had done something called as isosceles angle theorem and converse of isosceles angle theorem. Okay, I already instructed each and everyone to write this theorem 5 times and learn it by heart. किया है नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो आगे और थ्योरम्स आने वाला है. इतना ज़्यादा थ्योरम्स एक साथ करोगे तो कुछ याद नहीं होने वाला है. द रीज़न बिहाइंड गिविंग दिस 2 to 3 days गैप इज़ so that you can memorize these theorems and feed it in your brain. अच्छे से स्टोर कर लो अपने दिमाग शरीफ में. ओके, जिन्होंने किया है वेल एंड गुड, आगे के थ्योरम समझ में आएंगे. बाकियों के लिए तो भाई राम भरोसे. ओके, नाउ we are going to start with another interesting theorem that is called the triangle 30 60 90 degree theorem. Okay, the name itself suggests that the theorem is based on a triangle where the measure of the angles is supposed to be or is 30 60 90 degrees. Okay, so what is the theorem? Let's see. Okay, we have to prove that, see, this is 30 degree triangle. Look at the upper triangle only, ABC. Okay, so we have angle ACB is 30 degree. Okay, now we have to find the measure of side opposite to 30 degree and side opposite to 60 degree. What could be the length of these things? This is something what we have to find, and that is called the proof. That is called theorem 30 60 90 degree theorem. Okay, how will we start with this? First of all, what we have to do is, we have a triangle ABC such that angle A is 60 degree, angle B is 30 degree, and angle C is 30 degree and angle B is 90 degree. Okay, दिख रहा है? Now what you have to do is, first extend a line AB up to the point D such that B lies between A and D. Okay, B lies between A and D, and measure of AB and segment AB and segment BD are congruent, that is they are of equal measure. Okay, and then draw a line and join point D with point C to complete the triangles. Now we don't know what is this particular angle, what is this particular angle, we don't know. So everything we have to prove it. Okay, अपने को देख के समझ में आ रहा है वो सब नहीं चलेगा. We have to prove, that is called the theorem. So how to go about with the proof? चलो, we'll start with the proof. फिगर को थोड़ा 90 डिग्रीज पे रोटेट करके फिर देखो. ओके, 90 डिग्रीज पे रोटेट किया. नाउ कैन यू सी ABD and this point is called C. दिख रहा है? Now first of all what we have to do is, we have to prove that the hypotenuse are congruent, and then we also have to prove, only after that we can solve the sums. तो ये कैसे हम लोग प्रूव करेंगे? देख के समझ में आ रहा है, बट देख के समझेगा तो पॉसिबल नहीं है ना. वी हैव टू प्रूव. चलो, how to go about this? Now you can see two different triangles clearly, ABC and CBD. बराबर. Now in triangle ABC and CBD, we have length of AB is congruent to length of BD. बराबर, वन साइड congruent है. रीजन कंस्ट्रक्शन हम लोग ने बनाए उसको congruent है. Then we have angle ABD is congruent to CBD. Why? Both are 90 degrees. Okay, then the third thing what we can say is, hypotenuse हम लोग बोल नहीं सकता है, but the third thing is very easy. We can say segment BC is congruent to segment BC. Reason, common side. Every segment is congruent to itself, but we'll write it in the bracket common side. Okay, so now we have side, angle, side. So triangle ABC is congruent to CBD by SA
SAS test. Okay, so now the triangles are congruent. Now we can say angle CAB is equal to angle CDB is equal to 60 degree. Why? CACT corresponding angles of congruent triangles. Okay, समझ में आया? Similarly we can say angle ACB is equal to angle BCD, that is equal to 30 degree. Why? Again CACT बराबर है, we got our 60 and here also we got 30 corresponding angles. Now what we have to say is, first see 30, so angle ACD will be is equal to angle ACB plus angle BCD बराबर, the big angle is equal to plus छोटा angle. Okay, we can add the two angles and make the big angle. Reason angle addition postulate क्या किसके लिए? एंगल ACB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ACD. ओके, सो दिस इज एंगल एडिशन पॉस्टुलेट. और प्लस करने के बाद क्या मिलेगा हम लोग को? एंगल ACD इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, नाउ फ्रॉम द फिगर इन ट्राइंगल ACD वी हैव एंगल A 60 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री एंड एंगल C इज ऑल्सो 60 डिग्री. All three angles are 60 degree. That means that by definition this particular triangle is an equilateral triangle. Isosceles भूल जाओ, खत्म हो गया उसका theorem. An equilateral triangle बराबर. So since it is an equilateral triangle, then we can say length of AC is equal to length of AD is equal to length of DC. All three segments of a equilateral triangle are congruent बराबर, property है. So that means AC is congruent to AD and is congruent to CD. That means all three sides are congruent. समझ में आ गया? If all three sides are congruent, we have AB is half of AD. Okay, AB AD का हाफ है, कंस्ट्रक्शन ही किया था हम लोग ने वैसा. So we can also say, since AD is equal to AC, we can say AB will be half of AC also. बराबर है, AB is the side opposite to 30 degree, whereas AC is the hypotenuse. So we got our first proof that side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse. So what is the measure of this side? It is 1/2 into h. दिख रहा है? 1/2 into h. Now next thing is, same thing we have proved it here. First congruence part वाला जो part हम लोगों ने किया था for proving triangle ABC congruent to DBC. ओके, वहाँ तक हो गया. फिर 30 जो corresponding angle था 30 60 हम लोग ने ले लिया, वो कर दिया. Then we stated that segments are congruent. Okay, first segment is congruent to second is congruent to third. Equilateral triangle है, वो सब हम लोगों ने इधर state किया. But that comes in 30 degree angle. Okay, तो यहाँ तक का common है proof. We have to prove AB triangle ABC is congruent to DBC and ये यहाँ तक proof same है. Then in case of 30 degrees जो हम लोगों ने solve किया है, बराबर है. अभी टेक्स्ट बुक में और गाइड में टेक्स्ट बुक में as well as in your guides, okay, they have given this particular proof different and the proof for 60 degree side opposite to 60 degree a different thing. Okay, and they have made long theorems, but just to make it short, what I have done is I have taken this part. Even for proving this 60 degree wala property, what you have to do is we again have to start with the same steps. Prove first that both the triangles are congruent, and after proving that congruent, then we have to say that since angle B is 90 degree, तो यहाँ पर वापस कौन आ जाएगा? अपना पाइथागोरस चाचा आ जाएगा, बराबर है. ट्राइंगल ABC में 90 डिग्री है, therefore by Pythagoras we will have AB square plus BC square वगैरह. I'll come to this particular proof. Okay, so what I have done is, if this proof comes, they will ask you either 30 degree proof or द 60 डिग्री वाला प्रूफ. ओके, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा. अगर एक साथ पूछेगा तो लेसन एग्ज़ाम्स के एंड में आएगा, 5 मार्क के लिए आएगा.
और दोनों प्रूफ एक साथ पूछेगा, वो लोग एक साथ पूछेगा तो दोनों चीज़ अलग अलग बना के, अलग अलग डायग्राम बना के लिखने का ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू राइट इट इन शॉर्टकट मेरे जैसा. व्हाट यू विल डू, फर्स्ट जो कॉमन प्रूफ का जो कॉमन पार्ट है, पार्ट 1, राइट इट एज इट इज, देन गो फॉर दिस, गिव अ टाइटल. इन केस ऑफ सेगमेंट ऐप नहीं, ऑपोजिट है वो, OPP. ओके, जब से स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है सबको ऐप दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा था, इसीलिए बोल रहा हूँ. ओके, मला तर चष्मा है पण तुम्हाला नहीं है. इन केस ऑफ सेगमेंट 30 डिग्रीज एंगल, जो मैंने अभी समझाया तुम लोगों को, पूरा एक्सप्लेन किया, द सेम थिंग हैज़ बीन मैंशनड ओवर हियर. ध्यान से देख लो. एंगल A 60 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री. therefore क्या था, all angles are 60 डिग्री. therefore it's an equilateral triangle by definition. Okay, hence we say segment AC is equal to segment AD is equal to segment DC. All sides of equilateral triangle, all sides are congruent. और you can write all sides of an equilateral triangles are congruent. कुछ भी लिखो स्टेटमेंट आगे पीछे, grammar is not important in maths. Okay, since AB is equal to half of AD, this was our construction, बताया मैंने ऊपर. therefore we can say instead of AD we can replace AD with AC, which is the hypotenuse. So we can say AB is equal to half of AC. Since AC is the hypotenuse, we get the proof AB is equal to half of hypotenuse. Okay, so first proof अपना हो गया है, length of AB, that is side opposite to 30 degree, is equal to half into hypotenuse. Now the second proof के लिए हम लोग को जाना है. सेकेंड प्रूफ शुरू करते हैं हम लोग. सेकेंड प्रूफ के लिए क्या है, अगेन कम हियर इटसेल्फ. हम लोग का कॉमन प्रूफ कहाँ तक हुआ था, वी गॉट दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, देन वी हैव AC इज कॉन्ग्रुएंट टू DC. ये मिल गया अपने को. एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B. अगेन वो तो दोनों के अंदर हम लोगों ने देखा ये 90 डिग्री. ओके, नाउ फोकस, भूल जाओ ये सेकेंड वाले पार्ट को, अपना कंस्ट्रक्शन पार्ट को. फोकस ओनली ऑन द प्रॉब्लम दैट वाज गिवन, that is triangle ABC. in triangle ABC angle B is 90 degree. therefore by Pythagoras, हमारे पाइथागोरस चाचा ने बोला है हमको, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. बराबर है. चलो अभी पाइथागोरस is equal to AC square. Since again we are using the same thing, AB is equal to half of AD. बराबर है. AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC भी बोल सकते हैं हम लोग. इफ दिस इज हाफ ऑफ AD को अगेन रिप्लेस विथ AC, जो हम लोगों ने पहले 30 में भी किया था, 30 डिग्री वाले प्रूफ में. सो कैन रिप्लेस दिस विथ हाफ ऑफ AC. सो इंस्टेड ऑफ AB स्क्वायर वी आर राइटिंग हाफ AC स्क्वायर. ओके, प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. देन वी हैव BC स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस गोज ऑन द राइट हैंड साइड, सो प्लस है तो दैट बिकम्स माइनस, सो इट बिकम्स AC स्क्वायर. इसको भूल जाओ, यहाँ नहीं है, जो पहला है इधर वही पहला आएगा. ओके, होस्ट घर में रहेगा, जो गेस्ट जा रहा है वो एडजस्ट करेगा पीछे. माइनस हाफ ऑफ AC स्क्वायर. अभी जगह नहीं है तो अपने पास यहाँ जगह था, मैंने थोड़ा सा खाली था तो आई यूज्ड इट ओवर हियर. ओके, AC स्क्वायर माइनस हाफ AC स्क्वायर. BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस हाफ AC स्क्वायर. उधर से इधर आया, कंटिन्यू. therefore BC स्क्वायर BC स्क्वायर BC स्क्वायर BC स्क्वायर कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा. खाली वी आर ऑपरेटिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. ओके, नाउ वी हैव AC स्क्वायर बाय डिफॉल्ट इज 1 AC स्क्वायर. ओके, AC स्क्वायर माइनस हाफ, ओपन द ब्रैकेट, वी गेट हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 AC स्क्वायर. ओपन दिस ब्रैकेट ऑल्सो, वी गेट 1 becomes 4/4 माइनस 1/4. बराबर 4/4 is 1, equalizing the denominator. So 1 AC स्क्वायर में से 1/4 नहीं माइनस कर सकता है, 4/4 में से 1/4 माइनस कर सकता है. सेम थिंग आई हैव डन हियर इन द नेक्स्ट स्टेप. ब्रैकेट 4 - 1 अपॉन 4, दिस 4 - 1 अपॉन द कॉमन डिनोमिनेटर इंटू AC स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 3/4 AC स्क्वायर. 4 - 1 3 and 4 as it is, 3/4 AC स्क्वायर. ओके, now BC स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 AC स्क्वायर. इधर तक क्लियर है. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेक द स्क्वायर रूट. BC स्क्वायर बिकम्स BC, √3 becomes √3.
and root of 4 becomes 2. So now we have root 3 upon 2 and AC square का अगर root लेगा तो AC हो गया. So finally what we get is BC is equal to root 3 by 2 into AC, where AC is the hypotenuse. Okay, so we get side opposite BC, which is the side opposite to 60 degree angle, is equal to root 3 by 2 into hypotenuse. समझ में आया? We got our second proof. So this is 30 degree wala, this is 60 degree wala. Now in a triangle, what do we learn just now? In triangle 30, 60, 90 degree, side opposite to 30 degree is half into hypotenuse, is half of the hypotenuse. Side opposite to 60 degree is equal to root 3 by 2 into hypotenuse. ओके, एंड साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री क्या रहता है? वो हम लोग ने सीखा, वो हम लोग ने 5वीं से सीखा है. पाइथागोरस चाचा ने बोला था अपने को AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, वो इसमें पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखने का ज़रूरत है, इसलिए रिपीट कर दिया. लुक एट द प्रूफ केयरफुली. ओके, कंबाइंड प्रूफ तुमको इसलिए बताया है बिकॉज इन केस इफ टीचर पुट्स दिस पर्टिकुलर थ्योरम फॉर 5 मार्क्स एज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ योर एग्जाम. ओके, लास्ट मालूम है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन लास्ट में रहता है 5 मार्क्स का. उसमें ये प्रूफ डाल सकती है टीचर. अगर टीचर ने ये प्रूफ डाला तो 5 मार्क्स के लिए दो अलग अलग प्रूफ लिखने का ज़रूरत नहीं है. पहले 30, 60, 90 वाला जो थ्योरम है जिसमें 30 डिग्रीज का दिया हुआ है वही लिखो, और सेम डायग्राम में सेम प्रूफ के अंदर उसके नीचे वापस से हेडिंग डालो इन केस ऑफ 60 डिग्री, एंड सेकेंड प्रूफ को उधर ही ख़त्म करो. समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा स्मार्ट वर्क करने का बेटा. चलो, ये एक थ्योरम है. इसके बाद में वी आर गोइंग अहेड विथ अनदर वन मोर इंटरेस्टिंग थ्योरम. लेट मी कंटिन्यू इन दिस वीडियो इटसेल्फ. तो थ्योरम पार्ट इधर कवर हो जाएगा. देन वी आर गोइंग टू टेक मीडियंस एंड इट्स प्रॉपर्टी. मैंने आप लोगों को 7th का रिकैप वीडियोस भेजा था रिगार्डिंग एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस. होप आप सब ने देखा होगा वो. अगर नहीं देखा होगा तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो से देखने से पहले वो दोनों वीडियो देख लेना. 7th स्टैंडर्ड का रिवीजन हो जाएगा, तो उससे ऊपर हम लोग फिर सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी वगैरह डिस्कस करेंगे. वो सब प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर और एक प्रॉपर्टी है, न्यू प्रॉपर्टी विच विल बी लर्निंग विल बी सेंट्रॉइड G. ओके, चलो फर्स्ट विल कवर दिस. ओके, ये ट्राइंगल एकदम देखा जैसा लग रहा है. अपने पास सेट स्क्वायर है 45, 45, 90 डिग्री वाला, बराबर है, इसीलिए देखा जैसा लग रहा है. ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, इसी जन्म का बात है. ओके, पिछले जन्म का कोई रिश्ता नहीं है. चलो यहाँ देखो. नाउ वी हैव अ ट्राइंगल ABC सच दैट A and C आर 45, 45 डिग्रीज. तो ऑटोमेटिकली एंगल B विल बी 90 डिग्री, द रिमेनिंग साइड, बराबर है. नाउ इन दिस ट्राइंगल वी हैव टू प्रूव what is the measurement of AB and BC as compared to hypotenuse. जैसा हम लोग ने 30, 60, 90 डिग्री में किया था बच्चे लोग, अभी किया है, बराबर है. तो सेम थिंग वी हैव टू फाइंड अभी लेंथ ऑफ BC, लेंथ ऑफ AB. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस इन ट्राइंगल. इसको ऐसा करके देख लो, क्योंकि बेस, अगर ट्राइंगल का बेस अपने पास रहता है तो ही अपना दिमाग ज़्यादा चलता है. क्यों मालूम है? क्योंकि हम लोग को 90 डिग्री बराबर भापने का आदत रहता है, स्पेशली ऑल इंडियंस. एवरी इंडियन, पढ़ा लिखा हो या नहीं, अनपढ़ भी रहेगा ना तो भी 90 डिग्री बराबर भाप लेता है. बराबर कैसे क्या है? यू लुक एट एनी वन, जेंटलमैन और जेंटल वुमेन, दे आर वॉकिंग ऑन द रोड एंड व्हेन दे कम अक्रॉस 2 वॉल्स एट 90 डिग्री, दे गेट अ डिज़ायर फ्रॉम इनसाइड, थूकना है. बराबर, जैसे 90 डिग्री वाले वॉल के पास से गुजरते हैं उन लोग के अंदर से आवाज़ आती है, थूक 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 साले थूक. होता है ना, देखा है आपने सब जगह. इसीलिए बेचारे मोदी जी को स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ रहा है, लेकिन आज तक हम लोग ने ये आदत नहीं छोड़ा है. ओके, और मोदी जी का गवर्नमेंट रही या चला भी जाए, ये आदत वैसे भी नहीं छोड़ने वाले. वी आर इंडियंस बाय नेचर, हम नहीं सुधरेंगे. ठीक वैसा जैसा मेरे बच्चे लोग पहला टेस्ट लिया तो बिगड़े हुए थे, वापस रीटेस्ट लिया, मौका दिया सुधरने का, मेरे बच्चों ने साबित कर दिया वी आर इंडियन सर, हम नहीं सुधरेंगे. सेकंड में भी मार्क्स कुछ ज़्यादा अलग नहीं लिया, जो लिया था वैसा ही लिया है. ओके, और किसने किसने अपने मम्मी लोग को अपना असली मार्क्स बताया है, या घर में सब ने मम्मी लोग को बोल दिया सब चंगा सी?
ओके, जिसने अपने मम्मी को असली मार्क्स बताया है और करेक्ट मार्क्स बताया है, जो भी मिला है वो ग्रुप में कमेंट करके बताओ कि मैंने बताया मेरे को इतना मार्क्स मिला है, सर आई स्कोर्ड दिस मच एंड आई कन्वेड इट टू माई मम्मी। ओके, नहीं तो वैसे भी तुम्हारे मम्मी को फ़ोन तो करने ही वाला हूँ मैं, क्योंकि पेपर तुम लोगों ने तुम्हारा चेक किया है, मैंने भी इधर चेक किया है तुम लोगों का। ओके, सो सबको कितना कितना मार्क्स मिला है मेरे पास भी है। सो आई विल टॉक टू योर मम्मी एनी वे, बराबर। बाद में फिर मम्मी तुमको समझाएगी सब चंगा सी क्या होता है। ओके, so now triangle ABC, we have angle BC and AC। ओके, 90 डिग्री आ गया, मतलब कौन आएगा इधर वापस से अपना पाइथागोरस चाचा आ गया। ही विल से BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, जो अपना नॉर्मल प्रूफ है, बराबर। उसके अंदर नाउ सिंस AB एंड BC आर सेम, क्यों सेम? दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। बाय आइसोसेलेस एंगल थ्योरम व्हाट वी हैव, साइड्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर। कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस एंगल थ्योरम, एंगल से ऑपोजिट में साइड है कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव कर रहा है तो दिस इज कॉन्वर्स। आइसोसेलेस एंगल थ्योरम क्या है? व्हेन टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देन एंगल आ जाता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगर एंगल आता है तो वो नॉर्मल थ्योरम है, आइसोसेलेस। अगर एंगल के बेस के ऊपर वी आर शोविंग द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज़ कॉन्वर्स। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग। देयर इज़ अ स्लाइट कन्फ्यूजन, उसके अंदर ही बच्चे लोग कन्फ्यूज़ हो जाता है। आइसोसेलेस एंगल थ्योरम बोलेगा तो कॉन्वर्स का प्रूफ लिख के आते, यही प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने तुमको 3 दिन दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड नॉट ओनली द थ्योरम बट द डिफरेंस इन द थ्योरम। ओके, कम बैक टू दिस पर्टिकुलर थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। तो हम लोग ने पहले ही किया है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 45 डिग्री, नहीं इज कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करना है। वी हैव टू राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, बराबर। ये तो मालूम पड़ गया तुमको 45 डिग्री है। सो साइमल्टेनियसली वी हैव लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC। क्या लिखेगा हम लोग? कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस एंगल थ्योरम इज द रीजन। देन इन ट्राइंगल ABC वी हैव AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, बराबर है। नाउ AB स्क्वायर BC स्क्वायर दोनों इक्वल है, सो वी कैन रिप्लेस दिस BC स्क्वायर विथ अगेन AB स्क्वायर। वी हैव AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, बराबर। सो नाउ वी हैव 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो वी हैव AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 2 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 1/2 इंटू AC स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी हैव AB इज इक्वल टू 1/√2 इंटू AC स्क्वायर, बराबर। टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद में AC स्क्वायर नहीं आता है, स्क्वायर चला जाता है, सो इट इज़ AC। दैट मीन्स साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूस। मिल गया अपने को अपना प्रूफ। दिस थ्योरम इज कॉल्ड 45-45-90 degree theorem, where the length of the side opposite to 45 degree is equal to 1/√1/√2 into hypotenuse। समझ में आ गया? हो गया दोनों के दोनों प्रूफ। ओके, वी हैव कवर्ड टोटली 3 theorems now. These 3 theorems, what I will be doing is I will be sending you the photograph of the proof statement wise. Copy it statement wise 5 times लिखना है and memorize करना है। Okay, the main thing you have to memorize is you have to memorize these things. Side opposite to 30 degree is equal to half into hypotenuse. Side opposite to 60 degree is equal to √3/2 into hypotenuse. एंड साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूस, बराबर, जो हम लोगों ने इधर पीछे है। सो ये 3 फॉर्मूला है तुम्हारे लिए, ये 3 फॉर्मूला यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। दिस विल बी रिक्वायर्ड इन सॉल्विंग आवर प्रैक्टिस सेट 3.4। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इज मीडियंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, बराबर। मीडियंस एंड प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर हाइपोटेन्यूस एंड मीडियन प्रॉपर्टी
इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये एक और प्रॉपर्टी, एक और थ्योरम और प्रूफ है विच वी आर गोइंग टू स्टडी। ये वाले वीडियो में नहीं कवर कर सकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, बिकॉज इज ऑलरेडी 26 मिनट्स हो गया है बराबर। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस सेट 3.3, छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, एकदम क्यूट सा, ओनली 4 प्रॉब्लम्स। ओके, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोनों थ्योरम के साथों साथ कवर करेंगे। ओके, चलो बाय, आई एम कमिंग बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले तुमको वो मीडियन और अल्टीट्यूड का जो मैंने तुम्हारा रिकॉल भेजा है 7th स्टैंडर्ड का, just go through those videos, because without the recall clear in your mind, you are not going to understand the centroid property, or what is centroid, what is orthocenter, etc etc। okay, chalo bye bye।